Hello, hello, hi everyone. And sorry, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया है, थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस थे, बट I'm going to start with our setup first. We are going to talk about trading in India, how you can manage Indian people a different tag pattern and trading setup around it. Okay. Which I also have guests from TradingView, Mr. Abhishek, director, and he looks after all the efforts of the growth of trading in India. He manages all the partners, gets in touch with the influencers around India, finance community, trading community. We have इंडिया में activities देखते हैं, ये सारे efforts अभिषेक जी के हैं. So Abhishek, welcome here. Yeah. Hi, Yeah, Namaste. hi. Yeah, Uh, hi, Very Abhishek. well, good morning to all of you. Viewers, I'm really excited to be here along with Naman. Uh, this is a very good opportunity for all of us, as he's just going through conducting how the charts, to look over, have a look on the charts, exactly, functioning of the charts using the Dhan website itself. And probably the best part is like trading view. So, the collaboration of Dhan and trading view has been uh, one of the partnership which has been become proof of the market, so something which was just gave us the foundation and footing in the markets. So we are really excited for this Sure. collaboration with Dhan. Yeah. And we have done like that. We have done a lot of collaboration, lot of integrations and partnerships with TradingView. That in the later part of this webinar. He from TradingView, he's growth manager at TradingView India, and he looks efforts for uh, and around. Okay. So, yeah, hi Pranil. Hi Naman, hi everyone. Good morning and thank you for joining this webinar. And as Abhishek rightly said, it is really one of the best collaborations we had with Dhan, and we are super excited to have a partner like Dhan. So thank you so much. Sure. Abhishek, Pranil, and guys, छोटा सा एक introduction टाइप करते हैं around trading and then we are collaborating. Then we go for the example discussion with us and open after that for Q&A for the audience. Okay. So let me just share my screen. Okay. My screen is visible, guys, right? Okay. So this is the tradingview.com, and I'm sure everyone in India who is into the trading, who's a bit of market, knows about trading. Like हमें पता है जैसे ही कोई भी ट्रेडिंग या मार्केट्स की बातें करता है, इफ दे गो ऑन गूगल, उनके दिमाग में ट्रेडिंग व्यू कभी ना कभी हमेशा आता ही है, एंड दे हैव सीन ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स, एंड आई एम श्योर इसके ऊपर और लाइट्स डालेंगे. The journey of TradingView, yeah, why TradingView became so important, because I know very well in the early days, like before 2013 or 14, charts was a very difficult thing to access in the markets, right? And trading में आकर globally charts free में provide करना start किया. तो किसी भी product के लिए, किसी भी instrument के लिए, you can just simply go on a browser, search for the chart for everything. So that is how regular that right. And right now they started as like charting technical analysis platform. But right now it has become a community and they offer much more than just charts. Okay. Just like quickly, I'll take you what are those products. जैसे chart is of course will come later. But एक बहुत ही interesting part जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, that is screeners. Okay. If I'll click here on stop,
आपको यहाँ पे यू कैन विथ योर फिल्टर्स, विथ योर कंडीशंस, विथ योर सॉर्टिंग एवरीथिंग, आप यहाँ पे अपने स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं, स्क्रीनिंग बना सकते हैं, not only basis technical analysis but also fundamental analysis, and not just for the Indian market but also for global markets, crypto markets, because there will be stock markets only. Okay. Next, जैसे मैं आपको एक क्विक एग्जांपल बताता हूं कि यहाँ पे एक डिफॉल्ट स्क्रीनर बना हुआ है जिसमें ऑसिलेटर बेसिस, एडीएक्स, एओ बेसिस, एटीआर बेसिस या कमोडिटी चैनल इंडेक्स बेसिस कुछ यहाँ पे फिल्टर्स टेक्निकल लगे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे और फिल्टर्स लगाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप सारे कुछ भी फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। ये सारे हैं, लाइक कुछ डिस्क्रिप्टिव फिल्टर्स हैं, कुछ फाइनेंशियल फिल्टर्स हैं, टेक्निकल फिल्टर्स भी हैं। यू कैन सेलेक्ट बिटवीन द एक्सचेंज, आपको कौन सा एक्सचेंज के लिए करना है, कौन से सेक्टर्स के लिए करना है, इंडेक्स कोई पर्टिकुलर उस पर ही फिल्टर लगाना है, यू कैन डू दैट। आप देख सकते हैं जब मैं फाइनेंशियल पे जाता हूं तो यू हैव प्राइस टू बुक रेशियो के लिए भी, ऑपरेटिंग मार्जिन का भी फिल्टर्स है, एवरीथिंग आप अपनी कंडीशन, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल और स्ट्रेटेजीज के लिए इसको लगा सकते हैं, राइट। अनदर गुड फीचर इज हीट मैप। नाउ हीट मैप बहुत काम की चीज आती है। आप हीट मैप से क्या कर सकते हैं, एक सिंगल व्यू में पूरे मार्केट को एक साथ देख सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू गो टू ईच एंड एवरी चार्ट एंड सी एग्जैक्टली वहां पर क्या हो रहा है आज। आप एक हीट मैप लगाइए। जैसे यहाँ पे अभी S&P 500 इंडेक्स का लगा है, आई क्विकली चेंज इट टू निफ्टी या NSE का। ओके, आई चेंज इट टू निफ्टी 50 इंडेक्स, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपको बता रहा है कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स किस तरह से परफॉर्म करें। Now performance is basis previous day percentage change. Now if you want to look एक वीक का परफॉर्मेंस, you can select percentage W, or you wanted to change it to year to date, आप यहाँ से भी select कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, नॉट ओनली दिस, यहाँ पे और भी चीजें हैं। यह भी डिवीजन है मार्केट के कैप के बेसिस पे। यहाँ पे आपको कंपनी का साइज दिख रहा है, बॉक्स का साइज दिख रहा है, यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर। आप मार्केट कैप के बेसिस पे चाहिए या फिर आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेसिस पे चाहिए, सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेसिस पे भी। ओके, अनदर वन मोर इज इकोनॉमिक कैलेंडर। ओके, आप यहाँ पे जब इकोनॉमिक कैलेंडर पर आएंगे, सो दिस गिव्स यू अ कैलेंडर कि अभी क्या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अनाउंसमेंट आने वाले हैं। और यू कैन ऑल्सो हैव इट, ओके, let me just connect it back. Okay, you can also have it for a specific stocks की इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाला है। This gives you actual number, their forecast and previous value as well. ये अपकमिंग है, आपको अगर देखना है कि सिर्फ इस वीक में क्या आने वाला है तो ये आ सकता है। ओके, आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सारी कंट्रीज का है, मुझे सारी कंट्रीज नहीं देखना है। लेट अस सपोज मैं सिर्फ एक इन सबको रिमूव करके I'll just have it for the US and India. Okay. Okay, so you can see India का इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर मार्च 13 को रिलीज हुआ है। ओके, अपकमिंग अगर कोई आने वाले हैं तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पे कुछ यूएस का बता रहे हैं, इंडिया में हॉलीडे है मार्च 22 को, इसके बारे में बता रहे हैं। इंडिया में M3 मनी सप्लाई ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट्स आने वाले हैं। ओके, दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट डिपॉजिट ग्रोथ, बैंक लोन ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा रिलीज होना है मार्च 24 को। सो आपको एक सिंगल व्यू में फिर से यहाँ पे पता चलेगा। सो बिफोर यू गेट ऑन टू द चार्ट्स पार्ट, जस्ट डू द टेक्निकल एनालिसिस। प्रायर जो होमवर्क्स करने हैं उसके लिए भी सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड यू कैन यूज इट दैट। ओके, फिर मैं आपको आई वाज जस्ट शोइंग यू, telling you that TradingView has not just become a charting or analytical platform, just a view only thing. It has become a community for the traders. That is what यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कुछ लाइव स्ट्रीम्स कर सकते हैं, ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं, एजुकेशनल आइडियाज हैं, प्लस स्क्रिप्ट्स। नाउ TradingView has its own coding language, that is Pine scripts. आप Pine editor में, मैं आगे बताऊंगा चार्ट्स पर है, Pine editor में you can code your strategies, you can code your indicators, और उनके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटेजीज एंड इंडिकेटर बना सकते हैं। प्लस यू कैन शेयर इट टू द पब्लिक, टू द TradingView कम्युनिटी इन द कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स, तो वो भी होता है, राइट। प्लस वेरी रिसेंटली अभी TradingView has come up with a
वेरी गुड फीचर दैट इज माइंड्स. सो आप किसी कंपनी का स्टॉक ओपन करेंगे एंड साइड में इफ यू हैव समथिंग ऑन माइंड, इफ यू वांट टू जस्ट कमेंट और यू हैव सम view on it or outlook on it, you write it, everyone can read it. Okay. Next, मैं आपको सीधे इनका चार्ट्स पर लेकर चलता हूं. So this is their flagship product, flagship feature of the TradingView. Okay. आप देख सकते हैं बहुत सिंपल, जितने भी टूल्स चाहिए. आई एम श्योर आप जैसे ही ये चार्ट ओपन करेंगे, अगर आप मार्केट में न्यू भी है, हल्का सा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, बट थोड़ा सा आप जब फ्रेंडली हो जाएंगे, दिस इज वेरी क्लीन, वेरी क्लटर फ्री यूआई एंड यूएक्स. लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते जाएंगे, यू कैन डू लॉट मोर ऑन दिस चार्ट. एक एक डिटेल, एक एक बॉक्स, एक एक सेक्शन में यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स. जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक सिंपल सा यहाँ पे सर्च बॉक्स है. ये सर्च बॉक्स सिर्फ किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स, किसी इंस्ट्रूमेंट को सर्च करने के लिए ही नहीं है. आप उस सर्च के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं. जैसे एक क्विक एग्जांपल मैं अगर आपको देता हूं कि मुझे निफ्टी का एक फ्यूचर है. ओके. इस फ्यूचर पे मैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगा सकता हूं. यहाँ पे आप कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस देख सकते हैं, डिवीजन, माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट. ओके. मैं एक स्प्रेड बनाता हूं. ओके. निफ्टी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट माइनस निफ्टी सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट. ओके. नाउ one exclamation is a continuous current month chart, second exclamation is second month continuous chart. तो मैं एक स्प्रेड बनाया, सर्च किया, यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे निफ्टी के अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने के बाद एक स्प्रेड भी बनकर आ गया है. सो दिस इज हाउ यू कैन डू. इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल सर्च. ओके. नाउ लाइक फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे टाइम फ्रेम्स हैं, यहाँ पे कंपेयर करने का ऑप्शंस भी दिया हुआ है. यू कैन यूज डिफरेंट types of charts. I'm sure you must be using any one of this candlestick, one of the very popular one. Indicators पे आते हैं. Like I was talking about community scripts. तो यहाँ पे वो community scripts हैं, सारे indicators आपके list हो जाते हैं. You can see the author of those scripts, यहाँ पे उनके बारे में भी लिखा है. If you want to just copy the code, source code, आप यहाँ से copy भी कर सकते हैं. आप देख सकते हैं exactly क्या logic है. Okay. You can mark few of the indicators your favorite. If you have made any indicator, आप उनको भी लिख सकते हैं. यहाँ पे भी लिस्ट हो जाता है. प्लस द टेक्निकल इंडिकेटर्स, जिसके बारे में सबसे ज्यादा यूज होता है यहाँ पर. ओके. एंड नॉट ओनली जस्ट टेक्निकल इंडिकेटर्स, आप चार्ट्स पर यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, फंडामेंटल इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं. लाइक एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. पहले मैं किसी स्टॉक को सेलेक्ट करता हूँ, लाइक टाटा मोटर्स, और मैं इसका मंथली चार्ट ओपन करूंगा. I open the monthly chart. Okay. Now इस पर मैं एक लगाता हूँ रेवेन्यू फॉर एन एग्जांपल, टोटल रेवेन्यू. Now this is the financial, you can see the category. Now इस फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में मैं टोटल रेवेन्यू इंडिकेटर यहाँ पर लगाता हूँ, एंड आई कैन सी ऑन चार्ट्स इटसेल्फ. जब से यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ने रेवेन्यू को कैलकुलेट या इस डेटा को सोर्स करना स्टार्ट किया है, यू कैन सी कि हाउ द रेवेन्यू ऑन चार्ट हैज परफॉर्म्ड ऑफ द टाटा इंडिकेटर, टाटा मोटर्स. ओके. सो यू कैन सी कि यहाँ पे ड्रॉप हुआ था. आई एम श्योर दिस इज द कोविड टाइम, यहाँ 2020, एंड इसके बाद से रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है. एंड राइट नाउ टाटा मोटर्स रेवेन्यू इज अराउंड इट्स ऑल टाइम हाई ओनली. Let's hope good for it. So that is how you can use. आप different technical indicators, fundamental indicators सब कुछ लगा सकते हैं. And अगर आप सारे indicators का अगर आपका एक template बनाए कि I judge a particular stock or a index with these sets of indicators and I find my trading signals or trading alerts, तो आप उन सभी indicators को combine करके template के form में भी save कर सकते हैं यहीं पर. Okay, it's simple. Next एक और चीज है यहाँ पे, that is alert. I'm sure simple price alert तो सभी ने यूज किया होगा. आप यहाँ पे alerts ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, इंडिकेटर्स के बेसिस पर भी alerts लगा सकते हैं. ओके. मैं आपको एक सिंपल सा अलर्ट बताता ही हूँ. पहले मैं एक ड्राइंग, यहाँ से ड्राइंग टूल से एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ. आई हैव मेड दिस ट्रेंड लाइन. ओके. और एक इंडिकेटर भी लगाता हूँ. ये इंडिकेटर को मैं ऑन कर देता हूँ AM में. यहाँ पे मैं अलर्ट आया हूँ. नाउ यू कैन सी कंडीशन क्या है.
दैट इज आस्किंग द टाटा मोटर्स। तो बेसिकली दिस इज अ सिंपल प्राइस, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम बेसिस भी है और एएमए बेसिस भी है। ओके अगर मुझे एएमए एडाप्टिव मूविंग एवरेज बेसिस पे इंडिकेटर लगाना है और उसकी मैं प्राइस की लाइक ये पर्टिकुलर प्राइस ये एएमए क्रॉस करता है तो गिव मी एन अलर्ट। ओके नाउ व्हाट आई वाज आल्सो शोइंग यू कि ट्रेंड लाइन बेसिस इंडिकेटर, तो आप वहां से भी लगा सकते हैं, लेकिन एक और इजी तरीका है कि आप इस ट्रेंड लाइन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है, यू कैन सी एक अलार्म वॉच बना हुआ है, ऐड अलर्ट। आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ट्रेंड लाइन का भी आ जाता है कि आपको वैल्यू प्राइस का वैल्यू के बेसिस पे कराना है या ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कराना है। आप प्राइस और एएमए को क्रॉस कराना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से करा सकते हैं। ओके जैसे ही आप ये इंडिकेटर्स अलर्ट सेट करते हैं यू विल गेट दोस लिस्ट ऑफ अलर्ट्स हियर इन द साइड बार। ये मेरे कुछ इंडिकेटर्स लगे जो अभी स्टॉप हो चुके हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यू कैन एडिट देम, यू कैन पॉज देम, रीस्टार्ट देम, यू कैन डू। ओके ओके सिमिलरली ट्रेडिंग व्यू के पेड वर्जन्स में यहाँ पे रिप्ले भी आता है। क्विकली टेक यू थ्रू द डिफरेंट प्राइसिंग प्लान्स ऑफ द ट्रेडिंग व्यू आल्सो। यहाँ पे आप बार रिप्ले भी यूज कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू डूइंग बैक टेस्टिंग, या फिर आपको खुद एक मॉक ट्रेडिंग करनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन इफ यू जस्ट वांटेड टू डू इन द चार्ट्स एंड जस्ट टेस्ट योरसेल्फ, आप बार रिप्ले भी यूज कर सकते हैं। प्लस जब आप अपनी पाइनियर एडिटर में कोई इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो देयर इज अ ऑप्शन ऑफ स्ट्रैटेजी टेस्टर आल्सो। सो आप उन स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करके देख भी सकते हैं हाउ इट हैज परफॉर्म्ड इन द पास्ट। कूल। प्लस देन नाउ सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे अच्छा फीचर मुझे ट्रेडिंग व्यू का क्या लगता है, दैट इट गिव्स मी मल्टी लेआउट, मल्टी स्क्रीन चार्ट्स, कि मैं एक स्क्रीन पे एक साथ मल्टीपल चार्ट्स भी ट्रैक कर सकता हूँ। At one go, I can track up to 8 charts. मेरा प्रिफरेबल मोड होता है 3 चार्ट्स का। ओके लाइक फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे निफ्टी लाइक मैं बैंक निफ्टी को अगर ट्रैक कर रहा हूँ, ओके ये बैंक निफ्टी को ट्रैक कर रहा हूँ और मुझे इसके दो सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर दैट इज एचडीएफसी बैंक और दूसरा मुझे एक पीएसयू दैट इज एसबीआई, इनका पैटर्न मुझे एक साथ देखना है। तो मैं एक ही चार्ट में लगाकर इसको ट्रैक करता रहूंगा। ओके अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, मैं उस पर भी आता हूं, ठीक है, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी करते हैं तो वहां पर भी ये बहुत अच्छे से यूज हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल कैसे, आप यहाँ पे निफ्टी बैंक लगाइए और अगर आप स्ट्रैडल या फिर आपको सिंपल एक स्प्रेड भी ट्रेड करना है या फिर आपको एक लॉन्ग ओनली ऑप्शन स्ट्रेटेजीज ही करना है जिसमें आप नेकेड लॉन्ग जाते हैं, तो वहां पर भी ये काफी अच्छे से हेल्प हो सकता है स्कैल्पिंग करने के लिए। कि आपने यहाँ पे निफ्टी बैंक लगाया, आपने यहाँ पर निफ्टी बैंक का एक एटीएम कॉल सेलेक्ट किया, यहाँ पे निफ्टी बैंक का एटीएम पुट सेलेक्ट किया। ओके और यहीं पे आपने बेसिस निफ्टी बैंक के चार्ट मूवमेंट्स आपने इनके एटीएम्स के कॉल या पुट को बाय किया। सो इट विल हेल्प फॉर द स्कैल्पर्स आल्सो अ लॉट। ओके प्लस देयर आर फ्यू मोर थिंग्स लाइक आपके पास यहाँ पे वॉच लिस्ट है, यू कैन क्रिएट योर वॉच लिस्ट। ओके यू कैन इंपोर्ट वॉच लिस्ट। आपका वॉच लिस्ट में किस तरह से परफॉर्मेंस है, वॉच लिस्ट में किस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसका एक एडवांस व्यू भी यहाँ पे बताया जाता है। जैसे आपको मेरी वॉच लिस्ट में राइट नाउ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, कि फ्यूचर्स भी है, बॉन्ड्स भी है, इंडेक्स भी है, कुछ स्टॉक्स भी है। ओके और उन स्टॉक्स में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टेक्नोलॉजी सर्विस से 26% है। फिर उनके बारे में डिटेल्ड चीजें भी यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। ओके देन मैंने आपको क्विकली यहाँ पे बताया था अलर्ट्स, जैसे द डेटा विंडो, कि आपके चार्ट पे जितने भी चार्ट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उन सबके लिस्ट भी यहाँ पे आ जाती है, सो दैट यू कैन हैव अ व्यू ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स टुगेदर। हॉट लिस्ट मैंने आपको स्क्रीनर बताया था। ओके उस स्क्रीनर का अगर कोई छोटा वर्जन आपको कॉम्पैक्ट वर्जन देखना है, दैट कॉम्पैक्ट वर्जन इज हियर। ओके लाइक फॉर एन एग्जांपल मुझे एनएससी के वॉल्यूम गेनर्स देखना है, आई कैन सी इट यहाँ से। ओके गैप में कौन से स्टॉक्स खुले हैं या परसेंटेज चेंज वाइज यूजर्स कौन से हैं, यू कैन लाइक हैव अ सेटिंग्स आल्सो एंड यू कैन चेंज इट। लाइक यहाँ पे मुझे किस कंट्री का देखना है ये भी आ जाएगा, एंड इफ यू वांट टू लाइक चेंज की नहीं मुझे कोई और स्टॉक
हॉट लिस्ट में स्क्रीनर लगाना है, आप वो भी लगा सकते हैं। अगेन इकोनॉमिक कैलेंडर का कॉम्पैक्ट वर्जन फिर से चार्ट्स पे अवेलेबल है। दिस इज योर आइडियाज, यू कैन पब्लिश योर आइडियाज, क्रिएट सम स्ट्रैटेजीज, इंडिकेटर्स यहाँ पे, और उसको आप पब्लिक में शेयर भी कर सकते हैं। माइंड्स, जो मैं आपसे जस्ट बात कर रहा था कि काफी अच्छा न्यू फीचर है जिसमें आप अपने माइंड में अपना व्यू, अपना आउटलुक शेयर कर सकते हैं और वो ग्लोबली ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। इफ यू वांट टू चैट विद समवन, ये कुछ फीचर्स यहाँ पे अराउंड चैटिंग भी है, आइडियाज का स्ट्रीम है, योर लाइव स्ट्रीम्स है, नोटिफिकेशंस है, एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं अब आता हूं हाउ टू कनेक्ट अ ब्रोकर ऑन ट्रेडिंग व्यू। ओके, मैं फिर से क्विकली टाटा मोटर्स पर जाता हूं और इसको मैं सिंगल लेआउट का चार्ट बना देता हूं। नाउ चार्ट से अगर आपको किसी ब्रोकर को, आपको ट्रेडिंग भी करनी है, वो आप कर सकते हैं। कैसे? देयर इज अ ऑप्शन यहाँ पे, ट्रेडिंग पैनल, विल क्लिक ऑन इट, आपको दिखेगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स। यू कैन सी धन ऑल्सो यार, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यू कैन गो टू सी ऑल ब्रोकर्स एंड जस्ट पिन इट मार्केट फेवरेट। ओके, आप यहाँ पे जाएंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट, ये ऑप्शन आएगा। नाउ धन इज द फर्स्ट ब्रोकर इन इंडिया who is available on tradingviews.com trading panel, and you can trade directly from TradingView. Along with that, धन का एक खुद का और प्रोडक्ट है, that is tv.dhan.co, which is again built in collaboration with the tradingview.com, where we took the front end library and connected with our system. वहां पर you can do options trading, you can look for the options charts, and there is one more third thing, that is webhooks. ओके, जिसके बारे में मैं आगे जाकर और बात करता हूं। अभी हम क्विकली धन को कनेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे, एक नए पेज में कनेक्ट होगा। आई थिंक मेरा यहाँ पे बिकॉज आई एम इन ऑफिस एंड मेरे ऑफिस में भी टेस्टिंग चल रहा है उस कारण, बट आप श्योरली उसको कनेक्ट करेंगे तो आपका एक लॉगिन क्रेडेंशियल्स वो धन का मांगेगा। आप वहां पे धन के मोबाइल नंबर, धन का पासवर्ड्स इनपुट करिएगा और आपका कनेक्ट हो जाएगा। आप कनेक्ट करने के बाद you can place orders in four different ways. एक सिंपल वे है, that is order panel। ये आप ऑर्डर पैनल पे कनेक्ट करेंगे। अभी मैं एक पेपर ट्रेडिंग का मॉड्यूल्स कनेक्ट कर देता हूं। ओके, आई हैव कनेक्टेड पेपर ट्रेडिंग। सो आप जैसे ही करेंगे, ऑर्डर पैनल पे क्लिक करेंगे, सो यू हैव अ ऑर्डर प्लेसमेंट विंडो ऑफ ट्रेडिंग व्यू। आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करिए, अपना ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करिए, प्राइस इनपुट करिए एंड जस्ट सिंपली क्लिक बाय। आप धन से भी कनेक्ट करेंगे तब भी ऐसा ही आएगा, और जो भी ऑर्डर्स आप यहाँ पे प्लेस करेंगे वो कंप्लीटली सिंक्रोनाइज रहेगा धन के प्लेटफॉर्म से। ओके, दिस इज द वन वे। अनदर वे टू प्लेस ऑर्डर इज यूजिंग दिस प्लस बटन नियर प्राइस स्केल। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय वन टाटा मोटर्स या सेल वन टाटा मोटर्स भी है। इफ यू वांटेड टू क्रिएट वन मोर ऑर्डर, आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज स्टॉप लॉस ऑर्डर। नाउ ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स इज वेरी स्मार्ट इनफ, इट अंडरस्टूड कि बेसिकली आप एलटीपी के नीचे कुछ ऑर्डर लगाना चाह रहे हो तो इट विल बी आइदर अ लिमिट ऑर्डर फॉर बाय और अ स्टॉप लॉस ऑर्डर फॉर सेल। आप यहाँ से क्विकली उसको भी कर सकते हैं। नाउ मैं इसको क्लिक करूंगा तो ऑर्डर विंडो भी ओपन हो सकता है आपका। उसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन ये है कि आपको सेटिंग्स में जाके ट्रेडिंग और इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट को इनेबल करना होगा। ओके, अगर आपका ये इनेबल नहीं है तो आप इनेबल करिए, सो आप क्विकली चार्ट से ही ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं इस ऑर्डर को, जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये एक ब्लू कलर का लाइन, व्हाई ब्लू कलर? इट इज बिकॉज ये आपकी लॉन्ग पोजीशन है। अगर ये आप अपनी शॉर्ट सेल का ऑर्डर लगाते हैं या शॉर्ट पोजीशन होती तो ये रेड कलर का लाइन बनकर आता। थर्ड वे टू प्लेस ऑर्डर इज मार्केट ऑर्डर यूजिंग दीज टू बटन्स। आप यहां से क्लिक करेंगे, आपका डायरेक्टली ये मार्केट ऑर्डर टाटा मोटर्स में प्लेस हो जाएगा। कितने क्वांटिटी में प्लेस होगा? यू कैन सेलेक्ट क्वांटिटी फ्रॉम दिस बटन। ओके, यहाँ पे आपको कुछ प्राइजेस लिखे दिख रहे हैं, लाइक 419। नाउ दिस इज द बेस्ट ऑफर प्राइस एंड दिस इज द बेस्ट बिड प्राइस। आप जब बाय करने जाएंगे तो आपका मार्केट ऑर्डर बेस्ट ऑफर, बेस्ट आस्क पर लगेगा, दैट इज वाई यहाँ पे बेस्ट ऑफर आएगा एंड यहाँ पे बेस्ट बिड आएगा। फोर्थ वे, दैट इज वन मोर थिंग, दिस इज डेप्थ ऑफ द मार्केट। ओके, मार्केट डेप्थ भी जिसे हम बोलते हैं।
आप मार्केट डेप्थ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे बाय और सेल का तो विंडो है ही, आप लिमिट ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे क्विकली। ओके, एंड इफ यू वांट टू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप चेंज भी यहाँ पे कर सकते हैं। आप ड्रैग एंड ड्रॉप चार्ट से भी कर सकते हैं। ओके, जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे उनका उसका नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन प्लेस ऑर्डर्स ऑन ट्रेडिंग व्यू। मैं आपको क्विकली कुछ और चीजों के थ्रू लेकर चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू के, दैट इज देयर हेल्प सेंटर। नाउ ट्रेडिंग व्यू के जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस हो सकते हैं, इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट ट्रेडिंग व्यू, इसके सारे आंसर्स यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ एफएक्यूज इस हेल्प सेंटर में बनाकर दे दिए हैं, रिगार्डिंग पाइन स्क्रिप्ट, ट्रेडिंग, इंडिकेटर्स, सोशल नेटवर्क, वॉच लिस्ट, ड्रॉइंग टूल्स, एवरीथिंग, सब कुछ आपको मिलेगा। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल हम ड्रॉइंग टूल में जाते हैं। इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मुझे देखना है कि यार इलियट वेव्स पैटर्न को कैसे करते हैं, आई सर्च इलियट वेव्स, तो यहाँ पे आया है चार्ट पैटर्न इलियट वेव, आई क्लिक ऑन इट एंड देयर इज अ वीडियो ऑल्सो, और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है चार्ट पैटर्न, इलियट वेव चार्ट पैटर्न को। ओके, दैट इज हाउ यू कैन यूज दिस हेल्प सेंटर सेक्शन, एंड आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस दे ऑल्सो हैव अ वेरी वाइब्रेंट कम्युनिटी, इफ यू वांटेड टू आस्क समथिंग आप वहां पे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट धन, एट धन वी हैव अ सिस्टर कंपनी अपसर्च। अपसर्च पे एक डिटेल्ड कोर्स है ऑन tradingview.com कि किस तरीके से एक एक फीचर, एक एक सेक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहां पे देख सकते हैं कि कंप्लीटली एक एक चीज को डिटेल में बताया है कि एक टूल का क्या यूज है, हाउ टू यूज इट। आप वहां पे जाके देखेंगे तो आपको डिटेल में वो चीजें मिलेंगी। We'll come on to the home page again and I'll take you through the pricing plans. Okay. Okay. Yeah. So trading view का एक बेसिक वर्जन सभी को they can use it. It's trading view works on a freemium model. बेसिक वर्जन सभी के लिए फ्री में है। नाउ अभी राइट नाउ ट्रेडिंग व्यू का एक लिमिटेड ऑफर मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए चल रहा है। ओके, यू कैन लुक इट 50% ऑफ है सभी में। नाउ उनका अगर आप प्रो वर्जन लेते हैं जिसमें आप 5 इंडिकेटर्स, 5 इंडिकेटर्स ऑन अ चार्ट या 2 चार्ट लेआउट सेव कर सकते हैं, इट विल बी कंप्लीटली एड फ्री वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं। दैट इज 645 रुपीज पर मंथ इफ यू गो फॉर एनुअल सब्सक्रिप्शन, और अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं तो इट विल बी ऑन 1295 रुपीज। सिमिलरली प्रो प्लस है जो कि ओवर एंड अबव प्रो के फीचर्स के साथ और भी ज्यादा चीजें मिलती है, प्लस प्रीमियम फीचर भी है। राइट नाउ करेंटली आई एम यूजिंग प्रो प्लस। ओके, नाउ यहाँ पे आपको एक ब्रोकर सेक्शन भी मिलेगा जिसमें अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ब्रोकर्स को, जैसे मैंने आपको चार्ट से बताया था कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं ऑल ब्रोकर्स। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यू कैन सी देयर इज अ लिस्ट ऑफ ब्रोकर एंड वन धन भी यहाँ पे लिस्टेड है। सो क्लिक ऑन धन। सो just announcing very recently we got a best trading technology platform award from TradingView also for Dhan in 2022 and आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ब्रोकर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, एंड इफ यू वांटेड टू सेंड सम रिव्यूज ब्रोकर के बारे में यू कैन शेयर दोस रिव्यूज आल्सो हियर। अगर आपको कनेक्ट करना है तो यू कैन कनेक्ट यूजिंग दिस बटन आल्सो यहाँ से। ओके, एंड इफ यू डू नॉट हैव अकाउंट विद इंडियन ब्रोकर आप यहाँ से अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। So this is just a brief about TradingView. I'll call back Abhishek and Pradnil to share few more things about TradingView and how it is started, how India में क्या plans है और क्या different form चीजें कर रहे हैं। So yeah, Abhishek and Pradnil. So yeah, Abhishek, so I've just given a brief walkthrough of the TradingView, किस तरह से use कर सकते हैं। So I just wanted to understand, Abhishek, charting बहुत ज़्यादा important होती है traders के लिए। And मैंने देखा है कि जब newbies आते हैं they struggle a bit क्योंकि वो थोड़ा सा intimidating, overwhelming सा होता है charting and technical analysis. And you being the CMT, so let's first talk about CMT also, what CMT is
if someone wanted to learn technical analysis and later also wanted to get into the charted market technician, किस तरह से start कर सकते हैं? So thanks, Naman, for taking us through the platform features, and it's been an amazing session. Almost like how half an hour passed, I've never realized also, and it's thanks for that, and I appreciate all your efforts. Well, coming back to your question. As my, I have a CMT designation in my name. So CMT stands for Chartered Market Technician. To most who don't know, I'm just briefing about CMT. It's a professional designation, that certifies your expertise in technical analysis field on of financial markets. Technical analysis, bole to it's a study of past market data, primarily price, volumes को आप analyze करते हैं, and you identify the patterns and trends that can be used for making market predictions about future market behavior. So technical analysis in short, if I precise is, it is something which is you can say it is a disciplined, systematic approach to a market behavior and getting to know the supply and demand of the market. Okay. And Abhishek, like if someone wanted to just get into the trading या फिर technical analysis, so what should be the first thing a newbie in the market should do? So, I have realized over the years, when I started, it was early 2005, and I was thrown in the markets, and even the most volatile market, it was commodities market. And that was, a blessing in disguise for me. I joined a broking firm. That was my first job with Kotak Securities. It was Kotak Commodities. And I was working under Mohan Natarajan. He was the, at that time he was the director in Kotak Securities, and he just taught me something like life may anything which comes to you, it is not easy, as in like you have to take a lot of efforts, then only you will come, and you have to maintain a base for yourself. So wo base banane ke liye you have to start from your basics. Basics कहने का मतलब you have to do lot of the education behind it. You have to get educated. छोटी छोटी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि I have seen newbies who are coming in the market, they just trying to learn wave theory. आपको जान के ताज्जुब होगा कि wave theory सीखने से पहले I have already spent 10 years in the market. और तब जबकि 2005-06 में I was not even aware of markets. I shockingly, you will be surprised to know that I was not even aware of equities market also until 2005. So this was, amazing moment. I just go back into my life 10 years back. So then I realized these things. But yes, over the time, now coming back to your question, if you were newbie, how you can just really, take yourself and learn something about the markets. I feel that you should take it in a very phased manner. आप milestones रखिए. That अगर आप रोड पे चलते हैं, अगर आपके पास एक कोई माइलस्टोन होता है, तभी आप ट्रैवल करते हैं ना. आपको मालूम होता है कि आपका ये डेस्टिनेशन आ गया है, ये डेस्टिनेशन आ गया. ये अगर आपके पास रोड पे चल रहे हैं और आपके पास कोई माइलस्टोन ही नहीं है, आपने कभी रियलाइज किया है, कभी रिमोट लोकेशंस में गए हैं, तो देयर आर सम प्लेसेस वेयर यू डोंट इवन फाइंड दोज माइलस्टोन्स, एंड हाउ टफ इज इट टू नेविगेट दोज रोड्स. आपने खुद ने महसूस किया होगा इस बात को. सो these milestones is your levels of education. So you do your स्कूलिंग काइंड ऑफ. पहले आप स्कूलिंग करिए, स्कूलिंग के बाद आप ग्रेजुएशन करिए, फिर ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए. तो स्कूलिंग से कहने का मतलब होता है कि ओल्ड स्कूल एनालिसिस सीखिए पहले. व्हाट इज दैट ओल्ड स्कूल एनालिसिस? ट्रेडिशनल एनालिसिस, ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस सीखिए. मतलब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानिए. जस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली हाउ इट forms an important factor in taking your decisions in the market. So आप indicators के बारे में सीखिए, आप trend lines के बारे में सीखिए. You learn about multi-chart options. So there are so many things technical analysis includes. So ये छोटे-छोटे bits and
पीसेस में आप उसको सीखिए, जैसा कि नमन ने बताया कि there's some course he has like through upsurge, so it's an excellent idea. Why don't you go and just learn those courses through them and understand about markets in a phased manner. So जब आप सीख जाएंगे, then yes, then you are starting yourself, and then जैसे आप graduation करेंगे, post graduation में आएंगे, तो post graduation is something I call a wave analysis. I took 10 years to come to that level, but yes, then I have altogether left all the indicators. Now I'm just doing only price analysis. Got it, got it. So basically, in short, if I just want to conclude, do not jump the gun. Process को follow करिए, धीरे-धीरे सीखिए, बूंद-बूंद से घड़ा बनेगा. Okay, सिर्फ FOMO और greed के basis पर market में enter मत करिए. ये भी अपने आप में एक पढ़ाई है. उस पढ़ाई की process को complete करके आगे बढ़िए. Okay. So Pradnil, you have been associated with TradingView. So I just wanted to know, like how you got in touch with TradingView and what all plans you are doing with TradingView to grow and in India and around India. Yeah. So first of all, thank you, Naman, for giving such an insightful overview of how to set up charts on the platform, and it was really helpful. And as I said, that we are really happy with this association. So coming back to how I got associated with TradingView, as everyone else who is watching this webinar right now, so even I have been using TradingView for the past few years, and so just like I was also I wanted to get into trading and technical analysis, and wanted to go in that direction. So last year, while I was looking for some exciting career opportunity, I was like, I had opened two screens, and one was a job portal and one was a TradingView website where I was just looking at charts. And sometimes you have the best ideas in front of you. So I just thought, why not see if TradingView has any opportunity in India? And that is how I got associated with TradingView. And your second question is what kind of growth opportunities? So first of all, for TradingView, India is like one of the largest market, because a lot of retail people have now jumped into the market, and they are now really getting a sense since COVID that how it is very important to have a second or a third income stream. So a lot of people are now getting into options or futures, just having some sort of their savings into equity as well, because now they are seeing that you can't just rely on FDs and you can just rely on safe deposits. You need some exposure to equity. And I think our community here has, especially in India, has evolved so much, because Indian people are increasing their risk appetite, and now they are looking for these markets, and now they are looking actively for tools. They are looking for brokers who can provide them with such abilities that the decision making should not be very hard. A few years back, it was such a different landscape in India for trading, but now of course, like every 10th person with whom you are interacting for finance is always asking, like, what is your view on Nifty? What is your view on Nifty Bank? Whatever indices, commodities, or everything. So it's an exciting time to be in India, and we are having so much like we are adding features to the TradingView platform, as well as we will be providing more features to the community as well. So they can not only trade but learn from the platform, because a lot of people like you, like others who help them by showing these videos, it's really helpful to understand, like how Abhishek was also saying, that you can't just rush into trading. You have to take your time, you have to develop that trading skill. And it's one of the best platforms out there where not only Indian community but people from any community can look for videos, search, and of course post their ideas, so that others might be able to get some inspiration from them. Sure, correct. So Pranil, you just touched upon the futures and options part. So yeah. So I just wanted to understand what's the logic behind the TradingView.com do not have options charts and options data. Can we expect it to come in future? Yeah, so हमें बहुत feedback मिला है to get options on TradingView,
And I can just confirm this thing that we have a dedicated team working on getting this happen, because बहुत लोग हमें हर बार पूछते हैं कि options कब आ रहे हैं, and so that is something which is definitely in pipeline. Okay. और बहुत जल्द हम like we will be giving some update, like when I don't have an ETA right now, but there is a special team working on just this specific task. So Some good news. definitely, yeah. Good, nice. Okay, so around options, like we know that TradingView is popular. Now, Indian traders are trading a lot in the options market. Okay, so we wanted to offer something कि like वो TradingView भी use करें और उस पे वो options अगर trade करना चाहते हैं, since Dhan is associated with TradingView for the execution purpose, so हमने कुछ चीजें बनाई हैं. Like मैं अपनी screen share करना चाहूँगा यहाँ पे. So I'll quickly take you through one feature. Wait a minute. Okay, I'll go to web.dhan.co. मैं आपको explain करता हूँ यहाँ पे क्या है. So basically in TradingView हमने देखा था on charts one can set alerts, right? Now इस alert में एक option एक और चीज आती है, that is alert actions, right? यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो मैं क्लोज करके यहाँ पे आप notifications में you can see this notification कि alert आने के बाद what you wanted to do. So there is an option of webhook URL. So what we have done कि जैसे ही अगर आपने कोई alert लगाया है और alert के basis पे आप कुछ चीजें एक्शन ब्रोकर को भेज सकते हैं, that broker is Dhan. और ब्रोकर को क्या मैसेज भेजना है, टू एग्जीक्यूट समथिंग. वो आपको मैसेज कहां से मिलेगा, आपको web.dhan.co पर आना है. You have to go to my profile section. Okay, just go to my TradingView webhook. फिर click here. आप यहां से अपना URL जनरेट करिए. यहाँ पे ये URL जनरेट हो जाएगा. Okay, now what you wanted to do, if you wanted to buy or sell a single object, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं. आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नेम इनपुट करने की जरूरत नहीं है. सेकंड, बास्केट भी बना सकते हैं. आपकी अगर कोई बास्केट क्रिएटेड है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शंस के लिए काम आएगा. आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, लाइक फॉर एन एग्जांपल एक बुल कॉल स्प्रेड है, या आपने एक स्ट्रैडल या आयरन कॉन्डर बना लिया है, तो आप उस स्ट्रैटेजी को धन पर बास्केट में सेव कर दीजिए. वो बास्केट को यहाँ पे लिस्ट करिए, उसका जेसन जनरेट करिए, उसे कॉपी करिए. ओके, TradingView पे जाके मैसेज बॉक्स में उस जेसन को पेस्ट करिए, वेबबुक URL को यहाँ पे पेस्ट करिए, सिंपली क्रिएट कर दीजिए. तो बेसिस अलर्ट, लाइक फॉर एन एग्जांपल निफ्टी के चार्ट पर अगर आप ये लगाते हैं, या बैंक निफ्टी के चार्ट पर ये लगाते हैं, तो निफ्टी के चार्ट पे अगर कोई पर्टिकुलर लेवल या कोई इंडिकेटर वो सिग्नल अलर्ट ट्रिगर होता है या अलर्ट आता है, आपका वो बास्केट एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑन धन. ओके, इट्स एज सिंपल एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके लिए कुछ नहीं करना है. Okay, but I think this webhook URL feature is paid on tradingview.com. Okay, so आप not only this, आप Pine editor में if you know coding and if you are अपनी strategies आप कोड भी करते हैं, तो आप Pine editor में भी आप लिख सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं. प्लस इसके ऊपर अभी हम और एनहांस करके आप डायरेक्टली ऑप्शंस के सिंबल भी यहाँ पे इनपुट कर देंगे. तो आप tradingview.com से भी ऑप्शंस अगर ट्रेड करना चाहते हैं ट्रिगर पाइन एडिटर या अलर्ट्स को यूज करके, तो वो भी आप कर सकते हैं. ओवर एंड अबव धन का साथ TradingView का बहुत डीप इंटीग्रेशन और कोलैबोरेशन है ही, एंड वी हैव अ प्रोडक्ट tv.dhan.co जहाँ पे आपको ऑप्शंस के चार्ट्स और ऑप्शंस रिलेटेड फीचर्स, TradingView ऑप्शंस के चार्ट के ऊपर या TradingView के चार्ट्स के ऊपर अगर आप ऑप्शन चेन भी देखना चाहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं. So just इतना ही मुझे बताना था आपको. So what do you think, like Abhishek, आपने अभी जैसा बताया था कि you just do price analysis. So if you can just throw a little bit light, exactly price analysis देखने के लिए, price actions करने के लिए आप क्या करते हैं, कैसे देखना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए उसके अराउंड. So उसके पहले कि मैं बताऊं कि प्राइस एक्शन, I guess my voice is audible. Yeah. Okay. So we are all aware that we are advancing through some of the most unpredictable economic climate imaginable. अगर आप imagine करें, depression हो, major war हो, the Russian and Ukraine war is going on right now. Adani
event which has happened, the post war reconstruction jab hoga ya boom hoga. So in sare situations mein, I have just realized that how Elliott wave principle has fitted into the facts and how it really gels with it. That is what I liked very much about the wave theory, and how it has developed. I've gone through the whole book, and have been fascinated about this whole theory. On a lighter note, 40 साल के बाद मुझे मालूम पड़ा कि that why we get these 5 fingers, because to count waves 1 2 3 4 5. It's on a lighter note. So principle, ये जो एलियट वेव प्रिंसिपल क्रिएट किया राल्फ नेल्सन एलियट ने, it was it just fits into all these facts, and इसको जानने के लिए we you just have to understand only 3 cardinal rules. उसमें 3 ही rules हैं. अगर आप वो 3 rule को आप समझ जाएंगे, if you can understand all 3 rules, then you have almost navigated, I would say, 25% of the method actually. And what are these 3 rules, standard rules? पहला तो when the wave starts happening, you just you can't never jump onto a running wave. First of all, ये बहुत लोगों का guess रहता है, they start trying to guess that कि कैसे हम जल्दी से trend पकड़ ले. No, you should never do that. No, let that trend move first. Initially वो जब first wave move होता है, you allow that wave to complete and then let it drop in corrective sequence. So ये wave theory जो है वो एक्चुअली ना ट्रेंड में होता है. उससे क्या हम कैसे हम ट्रेंड जानेंगे कि किस ट्रेंड में और कैसे कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज यूज करना चाहिए. तो उसके वेरी सिंपल स्ट्रैटेजीज है जो हम बाद में बात करेंगे. पहला तो वो जो 3 कार्डिनल रूल्स है वो आपको जानना जरूरी है. उसमें कैसा है, जब पहला वेव आता है, द वेव 2 कैन नेवर रिट्रेस वेव 1 डाउन साइड. 100% उसको रिट्रेस नहीं करेगा. राइट. और ये पहला रूल है. सेकंड रूल इज, अगर 5 वेव एडवांस है, जैसा मैंने बताया था, 5 वेव आप इजीली काउंट कर सकते हैं. अगर आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो यू डोंट फोर्स योरसेल्फ. आई हैव इवन सीन पीपल दे गोइंग इनटू द चार्ट्स एंड दे डूइंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और मार्केट कहीं चला जाता है कहीं पे. तो यू नेवर डू दैट. इट इज वेरी सिंपल. इफ यू कैन काउंट, यू कैन काउंट. इफ यू डोंट काउंट, देन जस्ट बी असाइड. तो सिंपली फर्स्ट रूल, वेव 2 कभी वेव 1 के नीचे नहीं आएगा. इट विल नेवर रिट्रेस 100%. सेकंड रूल, वेव 3 जो है वो हमेशा बड़ा ही होता है कंपेयर टू वेव 1, वेव 3 और वेव 5. ये 5 वेव का सीक्वेंस होता है. अगर आप देखेंगे मेरे हाथों को ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज माय फिंगर, थर्ड वन. सो दिस इज द बिगेस्ट फिंगर. उसको रॉन्ग तरीके से नहीं assume करना है. इट इज अ स्पेस. 5 एलिमेंट अगर आप देखेंगे, 5 एलिमेंट होते हैं. We are all made of 5 elements, fire, air, space, water and earth. So ये 5 एलिमेंट है और वो वही 5 एलिमेंट को आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है. अगर आप उस कनेक्शन को जान लेंगे, then you know you have done that. Now coming back to the rules, the third जो वेव है वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता है वेव 1 से और वेव 5 से. अगर वेव 1 से छोटा हुआ तो वेव 5 से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए. सो दैट इज द सेकेंड रूल. राइट. नाउ थर्ड रूल इज, वेव 4 जब बनता है, वेव 3 1 2 3 और जब वेव 4 आएगा, वेव 4 जब आता है वो वेव 1 के हाई के नीचे नहीं जाना चाहिए. That is, these are 3 cardinal rules. अगर आप इस 3 रूल को आप जान सकते हैं तो आप you have navigated half of the journey and it is very easy. But yes, it takes a lot of time, it takes a lot of effort to even reach at that level. And as I've earlier pointed out, that your education should start from basics. पहले आप fundamentals build करिए. The technical analysis का basic एक बार build करने के बाद ही आप post graduation में जाइए. Don't jump in that. और उस बेसिक को बिल्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज रीड सम गुड बुक्स. एंड वन ऑफ द बुक्स व्हिच आई हैव रेड मल्टीपल टाइम्स इज एडवर्ड्स एंड मैगी. उस बुक को करीबन मैंने 8 से 10 बार पढ़ा था अपने एग्जाम के सिलेबस. आई वाज जस्ट अपीयरिंग फॉर CMT एग्जाम व्हिच इज कंडक्टेड इन 3 levels.
लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में आपके बेसिक नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। तो उस दौरान एडवर्ड्स एंड मैगी बुक मैंने कम से कम 8 से 10 टाइम पढ़ा था। एंड इट इज जस्ट फैसिनेटिंग दीज टू नो अबाउट द ऑथर्स, हाउ दे हैव faced in their real life, some of the experiences they have mentioned. So it's amazing, to understand those things. Now, yes, now coming back to wave theory, जैसा कि बताया मैंने, 3 रूल तो आपको कंफर्म मालूम होना चाहिए। फाइनली आप वेव एनालिसिस से आप कैसे, मतलब आपको एक आइडिया आता है, तो पहले तो आपको ट्रेंड कैसे मालूम पड़ेगा। इट विल लेट यू नो 5 क्लियर वेव्स है, तो ट्रेंड आपको मालूम पड़ता है। काउंटर ट्रेंड क्या होता है, उसमें ना वेव 2 और वेव 4 जो रहता है वो काउंटर ट्रेंड मूवमेंट्स है। काउंटर ट्रेंड मतलब अगर आप देखेंगे वेव 1 और वेव 3 और वेव 5, ये इंपल्सिव वेव्स है। इंपल्सिव मतलब वो भी सब डिवाइड हो सकते हैं 5 वेव्स में अंदर, इंटरनल, बिकॉज मार्केट इज फ्रैक्टल इन नेचर, वो उसके अंदर भी सब डिवाइड होते रहते हैं। बट दीज आर वेरी टफ टू इवन गो ऑन अ लोअर डिग्री चार्ट। अगर आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट पे आप ट्राई करते हैं, so I feel that is not, you are not doing justice to the charts. You have to, what you have to do as a traditional old school analysis में भी सिखाते हैं, you have to first understand the higher degree chart, पहला monthly chart, फिर lower chart, फिर time frame में आप छोटे छोटे जाइए, सीखिए, and then you come back to applying on 5-minute chart. आज मैं newbies को देखता हूँ, they open a 5-minute chart and they apply 1 2 3 4 5 और उस बेसिस पे वो ट्रेडिंग कर लेते हैं। this is actually you are inviting trouble to yourself, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप कुछ सीखे नहीं है 5 मिनट के चार्ट पे आप, इट इज नॉट दैट इजी एक्चुअली टू फ्रैंकली टू से। तो आप उसको पहले हायर डिग्री से आइए, मंथली, फिर वीकली, फिर डेली, फिर आवरली, फिर इसके बाद 15 मिनट्स, ऐसे कर करके आप सीखेंगे। तो आपको देखिए वेव एनालिसिस से, जो कि मैं सिर्फ प्राइस एनालिसिस यूज कर रहा हूँ, आज 10 साल की एक्सपीरियंस के बाद, फाउंडेशन बिल्ड होने के बाद, उससे क्या क्या मिलता है। एक तो ट्रेंड मालूम पड़ता है, क्लियर एडवांस मूवमेंट मालूम पड़ता है, आपको काउंटर ट्रेंड मूवमेंट मालूम पड़ता है। काउंटर ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं, वेव 2 और वेव 4 जो अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं। वेव 1 ऊपर जाएगा तो वेव 2 नीचे आएगा, काउंटर ट्रेंड हो गया। अगर अज्यूम करते हैं अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है, वेव 1 ऊपर गया, वेव 2 इज अ काउंटर ट्रेंड मूवमेंट, वेव 3 ऊपर गया, वेव 4 इज अ काउंटर ट्रेंड। तो उसमें से दो जो काउंटर ट्रेंड है, सेकंड एंड फोर्थ। एंड व्हाट आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड, आप वेट करिए काउंटर ट्रेंड मूवमेंट खत्म होने का। अगर आप फिगर आउट कर सकते हैं काउंटर ट्रेंड मूवमेंट का एंड होने का, then nothing better than that, you have just got an magical wand। जैसे ही wave 2 खत्म होगा, you know what is going to come next, wave 3, और wave 4 खत्म होगा तो क्या आएगा, wave 5। yes, that is the trading opportunity। ऐसा नहीं कि आप हर बार ट्रेड करने बैठे हैं, स्क्रीन के सामने आप बैठे हैं तो लगातार आपको ट्रेड करना है, नहीं, that is actually not required। सो ये कहने के बाद अगर आप देखेंगे, if I will ask Naman to even share the screens which I have been doing, so I'll just ask him to share some snapshots which I have been doing। तो 6th March का अगर आप दिखाएंगे, and before even sharing that image, just go on to Bank Nifty, Naman, if you can go। Sure. So I'll share my screen and I'll put the Bank Nifty chart here. Okay, is this okay, Abhishek? Yes. So this is you've taken a monthly chart, right? I'll now do it daily. Yeah, daily chart, and then we can just go into something like 4-hourly chart. We can just go on to 4-hour chart। 4-hour charts, okay। So अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इस पैटर्न को, जो कि 44,151.80 का हाई था, 44,151.80 टॉप में, एकदम सबसे टॉप में 14 दिसंबर का हाई था ये। यहाँ से ये ना अगर पैटर्न को आप देखेंगे तो ये ना बहुत ओवरलैपिंग पैटर्न है, दिख रहा है आपको कैसे, मतलब ये नीचे ऊपर सब ये ओवरलैप हो रहा है। अगर आप देखेंगे ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे जब ये एक करीब February 1, जब हमारा बजट डे आने वाला था, February 1 या उसके एक दिन पहले अगर आप ध्यान देंगे, तो वो उस पॉइंट पे आके मार्केट कैसे एकदम सडन फॉल हुआ, एकदम सडन फॉल हुआ। बजट डे का दिन था, मुझे आज भी याद है कि मतलब सडनली वो मैंने ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि इट विल जस्ट ट्राई एंड कम डाउन, बट यस, दैट ओनली कम्स थ्रू एक्सपर्टाइज। अगर आप ध्यान देंगे उस पैटर्न
पैटर्न को, उस एरिया को, द 1 फरवरी बजट डे से आप करीब करीब अभी रिसेंट जो 6 मार्च है, 6 मार्च का टॉप क्या है, 41,000 671 और 659 था, 659 और उसके पहले 41,671 था। सो अगर आप उस पैटर्न को आप ध्यान देंगे तो उस पैटर्न में आपको देखेगा ओवरलैपिंग कितना है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। सो ये ओवरलैपिंग पैटर्न क्या है, एक तरह से आपको बताता है कि इट इज वन ऑफ सम काइंड ऑफ पैटर्न एंड दैट इज अ करेक्टिव पैटर्न, क्योंकि इंपल्स कभी ओवरलैप नहीं होता है। इंपल्स आपको हमने आप बताया था कि 5 वेव्स होते हैं एग्जैक्टली, यू कैन काउंट इट इजीली 1 2 3 4 5। इसमें कैसे, इसमें काउंट कैसे करेंगे, अगर आप काउंट कर रहे हैं तो देखिए ना 1 2 3 4 5 और वो सब ओवरलैप हो रहा है उस जोन में। 1 फरवरी से लेके आज 6 मार्च तक सारे वेव्स ओवरलैप हो रहे हैं। तो वो क्या पैटर्न है, वो ये एक पैटर्न अगर आप ध्यान देंगे, आप स्नैपशॉट पे आप देखेंगे, आई विल जस्ट आस्क नमन टू शेयर 6th मार्च का स्नैपशॉट। सो दिस इज द काउंट एक्चुअली, you would realize that that pattern what we started from the budget day, it is a classical triangular correction pattern. So what is that triangular, I've counted this A B C D and this was the wave E which got ended, and that all I have done in my live update, update also, even on TradingView also I keep contributing. I have been suggesting to all my followers who have been that we are looking for a bigger fall here, and I even updated just a day in advance. 2-3 दिन पहले ही मैंने 1 मार्च को ही बता दिया था, ये 4 दिन पहले हमारा वो वेव कंप्लीट नहीं हुआ था। But even just out of the knowledge, out of experience, I realized that this is something what is a biggest opportunity for traders to come. और वो क्या हुआ मालूम है, 16 मार्च को अगर आप ध्यान देंगे तो it was just पिटारा खुल गया एंड एवरीवन वाज शॉक्ड, ये कैसे मार्केट गिर गया। तो देखा आपने कैसे मार्केट गिरा, 41,671 से ये 38,613 आ गया। इट जस्ट ड्रॉप शार्प 38,613। और वो क्या था, आपने ये भी सोचा, ये इस ट्रायंगुलर पैटर्न को हम पेनल्टीमेट वेव बोलते हैं, जो कि मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। अगर आप ऊपर देखेंगे 44,151.80 जो हाई था ऊपर 14 दिसंबर को, उसके पहले भी एक पेनल्टीमेट वेव था, वहां पे भी एक ट्रायंगल बनाया हुआ है चार्ट में, छोटा सा व्हाइट ट्रेंड लाइन डाला उसके पहले, उसके भी पहले अगर आप देखेंगे, या सो वो एक ट्रायंगल था। उस ट्रायंगल के होने के बाद जो वेव आया था वो लास्ट वेव था। तो इसका मतलब हम यहाँ पे भी बड़े टाइम फ्रेम में भी हम लोग ये जो काउंट हो चल रहा है, हम लोग कहीं ना कहीं बॉटम होने वाले हैं, एंड दैट्स इट। इट वॉज द बॉटम माय डियर फ्रेंड, 38,613 बॉटम था, और वहां से ही मार्केट ने रिवर्सल लेना चालू कर दिया। सो इट जस्ट इट्स जस्ट आउट ऑफ लव टू योर चार्ट्स, आउट ऑफ प्राइस एक्शन, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कमिंग बिहाइंड। सो आप कर सकते हैं वैसा आप भी, एंड यस दैट्स इट। So like very good, like इसी तरह का कुछ टेक्निकल एनालिसिस हम लोग भी कोशिश करते हैं, but we got to learn lot from you. मैं स्क्रीन शेयर करना स्टॉप करता हूँ, and we have got few questions, okay? So like पहला क्वेश्चन है, how do you interpret the various indicators available on TradingView charts? जैसे अभी एग्जांपल चार्ट पैटर्न का अभिषेक ने दिया ही है। अभिषेक, डू यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन? हाउ डू यू इंटरप्रेट द वेरियस इंडिकेटर्स अवेलेबल ऑन ट्रेडिंगव्यू चार्ट्स? सो यस, सर्टेनली अगर आप इंडिकेटर्स देखेंगे, जैसे कि इफ यू गो ऑन टू RSI, जैसा कि मैंने हमें बताया कि वो ना आपको एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, अनलेस एंड अनटिल यू आर एजुकेटेड योरसेल्फ, यू आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग। सो ये 3rd लेवल में करीब आता है, प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ टेक्निकल दिस थिंग। देयर इज अ बुक, उस बुक में एक ऑथर ने रूल के बारे में बताया था। इफ एनीवन वुड बी इंटरेस्टेड टू नो, एंड्रू कार्डवेल। सो वो मेरा फेवरेट ऑथर हुआ करता था, ऑब्वियसली है। आई स्टिल एंजॉय डूइंग दिस, बट यस ओवर द टाइम आई हैव रिमूव्ड ऑल इंडिकेटर्स। बट यस, अगर आप एक RSI इंडिकेटर उठा लेंगे, जस्ट नमन को बोलूंगा शेयर करें स्क्रीन, एंड आप एक RSI इंडिकेटर को लगा लीजिए उसमें। ओके, बैंक निफ्टी के चार्ट्स में मैं RSI इंडिकेटर लगा देता हूं, लगा लीजिए RSI। या
सो अगर आप RSI इंडिकेटर को देखेंगे, एक इसका जोन है मार्क्ड, 30 लेवल इज द लोअर लेवल एंड 70 इज बाय डिफॉल्ट। ये आप चेंज कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में जाके, दीज लेवल्स 30 एंड 70 का जो आपको चेंज करना होगा लेवल या, तो वो बाय उसमें अवेलेबल है। आप यू नो यू कैन जस्ट फिगर आउट लेटर ऑन। सो इट इज वेरी इजी, ऑफलाइन भी हम डिस्कस कर तो सकते मेरे ख्याल से तो ये करने की जरूरत नहीं है, ड्रैग एंड हैं। ड्रॉप। हाँ, आप उसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं। आई गेस इफ यू कैन डबल क्लिक दैट, यू विल जस्ट कम टू नो यू शुड, यू विल गेट ऑल दैट ऑप्शन ऑफ चेंजिंग एंड यू कैन इवन ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ, वो भी कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। तो उसमें कैसा रहता है RSI में, एंड्रू कार्डवेल ने, जो ऑथर है, उन्होंने बात की है कि ये सजेस्टेड दैट देयर इज अ बुल जोन एंड द बेयर जोन। वो बुल जोन कैसा होता है, अगर उस एक सर्टन बता रहा हूँ, जैसे अब मार्केट गिर रहा है, अभी मार्केट गिर के 38 का रीडिंग है, 38.44 का रीडिंग है, करंट रीडिंग है। अगर ये ऊपर जाता है, इफ अज्यूमिंग दैट इट गोज अप, देन वो जो 55, 50 और 60 का जो रेंज है, मतलब इट इज नॉट इवन क्रॉसिंग अबव 60, 60 के ऊपर नहीं जा रहा है, इट इज जस्ट समवेयर यू नो टेक्स अ यू टर्न एंड इट होल्ड्स बिटवीन वैल्यू ऑफ 55 एंड लेट्स से अज्यूमिंग 50 एंड 60। तो ये जब ऊपर जाएगा ना, तो वो एक जोन होता है वहां पे केयरफुल रहने का। व्हाई? बिकॉज दैट इज अ बेयर जोन। वहां पे ये ऐसा नहीं है कि सब ट्रेडिशनल एनालिसिस में बोल लेते हैं कि 50 के ऊपर क्रॉस हुआ इट इज अ बुल। नो, इट इज नॉट। अगर वो ट्रेंड डाउनसाइड चालू हो गया, दैट इज अ रिट्रेसमेंट। वो जो RSI भी रिट्रेसमेंट बताता रहता है। तो वो जैसे ही टर्न करेगा लोअर वैल्यू से, अभी लोअर वैल्यू समझिए डिप कर गया 11 या 12, समटाइम्स इट इवन गोज बिलो 20 आल्सो। 20 करके ये यू टर्न मारता है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे, आपको दिखेगा RSI इज डिपिंग एग्जैक्टली इवन लोअर बिलो 20 लेवल्स आल्सो, लोअर टाइम फ्रेम में दिखेगा। तो ये जैसे यू टर्न लेगा, और यू टर्न लेके जैसे ही 45 से लेके 60 इज द रेंज विच हैज बीन डिफाइंड। ये आपके एक्सपीरियंस से आप डिफाइन कर सकते हैं। उस जोन में जाता है, और तो वहां पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज अ बेयर जोन। और अगर मार्केट अगर नीचे के साइड पे आता है, जैसे ऊपर से गिरा, ऊपर से अगर ये 25 और 35 के बीच में है, तो दैट इज कॉल्ड अ बुल जोन। सो यू हैव टू जस्ट एंड देन यू कैन टेक योर अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग, और ऊपर गया तो आप सेलिंग अप्लाई कर सकते हैं। वैसा ये एक इंडिकेटर के साथ मैंने बताया है। वैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, तो बहुत टाइम लगेगा उसको, लेकिन करेक्ट। यस। सो विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन है, there is a question, yeah, very interesting one, like it's an important thing. Can you explain the significance of volume in trading? How volume plays a role, how important volume is, पैटर्न्स के साथ वॉल्यूम को कैसे यूज करते हैं, कैंडलस्टिक के, या फिर किसी इंडिकेटर में कोई सिग्नल आया है वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है या कम है, तो हाउ टू इंटरप्रेट दैट वॉल्यूम? कैन यू अभिषेक? So volume को जब आप as a elitician, as a wave analyst, I'm just looking out from that, you wearing that goggles of wave analyst. तो I've realized कि जब जैसे ही आप 5 waves पैटर्न कंप्लीट होते हैं, 1 2 3 4 5, और जैसे ही आप फाइनल वेव में जाते हैं, किसी भी ट्रेंड को अगर आप देखेंगे ऊपर से, जैसे ये ऊपर से काफी लंबा ट्रेंड है, 44,001 5180 जो टॉप है 14 दिसंबर का, वहां से ये नीचे आया। अगर आप ध्यान देंगे तो वॉल्यूम पैटर्न आपको ध्यान देंगे, वॉल्यूम इज एक्चुअली डिक्लाइनिंग। अब कैन यू सी दैट वॉल्यूम जस्ट रिसेंट भी करंटली वॉल्यूम थोड़ा कम होता चला गया है। So it is suggesting that people are now very careful in taking sell positions. Now volume धीरे 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 ये कम होता चला जाएगा, और जैसे ही आप फाइनल वेव में आते हैं, तो वहां पे तो नहीं के बराबर होता है वॉल्यूम। एंड देयर इज सर्टेनली एक जैसे वो ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो सडनली आप देखेंगे एक वॉल्यूम सर्ज हो गया। तो ये एक लॉजिक रहता है, वो आप वॉल्यूम पैटर्न को आप एनालाइज करेंगे, तो इससे आपको मालूम पड़ता है कि यू आर इन सम ट्रेंड। धीरे 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 एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन भी आप लगा के रखेंगे, तो आपको समझ जाएगा वैसे कि ये और किसी जगह पे अगर वॉल्यूम ट्रेंड होता है, जैसे अगर स्पाइक आ गया, तो आप समझ जाइए वो है ना, या तो वेव 3 है, या तो वेव 1 है, या तो वेव 5 है समवेयर। लॉजिक मैंने जैसे बताया कि वेव 1 हो, वेव 3 हो, विच इज द सेंटर फिंगर, आई एम नॉट यूजिंग द अदर वर्ड, एंड देन फिफ्थ तो इन तीनों इंपल्सिव वेव में अगर देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं द वॉल्यूम प्ले रोल करता दिखेगा। बट काउंटर ट्रेंड मूव्स में जो वेव 2 और वेव 4 होता है, उसमें आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा।
सो आपको एक उससे भी आप एक लॉजिक काउंट का एक क्लैरिटी आ जाएगा आपको मार्केट में. Yeah. So Pranil will have one last question. Pranil, if you can answer this, like how important to identify the support and resistance level on TradingView charts, and what are the tools that can be used to identify support and resistance on TradingView? So if you can throw some lights. Yeah, sure. So basically, I don't trade on daily basis, but I usually as Abhishek is a wave analyst, so I'm just very new to the market. Just been 2-3 years I'm working in the markets. So for me, I use simply support and resistance are very important. Okay, and for me, basically personally, this is my view. I use simple pivot points first of all, and I also use maybe 3 moving averages to just check whether the trend is following that or not. But I think pivot points are very underrated. Like बहुत लोग pivot points लगाते नहीं है, but for me it has always worked, and it has given it is very easy to just see कि reversal कब आएगा. And so yeah, and support and resistance are very important again to see what kind of psychology the market is thinking for that particular stock, whether everyone is bullish or there are only few people who are bullish. So support and resistance really play a key role on discussing or not on discussing, but support and resistance play a very key role on determining what is the general psychology that everyone is having right now. Is everyone is scared, or everyone are really thinking that this is something that is going to go up very high or a rally ban sakta hai. Got it. So for me, that is it. Thank you. Correct. In fact, pivot points का काफी modified versions भी मैंने देखा है. TradingView के community scripts बने हुए हैं and काफी helpful होते हैं, वो work भी करते हैं. So one such popular thing is central pivot range. That is still as a community script on the TradingView.com, but it is very popular. And वो इतना popular था कि users on Dhan they demanded us कि हमें ये चाहिए, या हमें since it is a community script हम नहीं बना, हमें TradingView से नहीं मिला था, so we understood the logic and हमने उसको खुद create करके deploy किया अपने यहाँ. इस तरह से और भी काफी indicators हैं. So pivot point is काफी underrated. I agree with that point. So I think with that we'll end here, and it was a very good session. Thank you Pranil, thank you Abhishek. It was nice chatting with you guys, and we have got a very good questions. काफी questions हैं, हम सबको answers नहीं कर पाए, but we have a very good community both at Dhan and on TradingView. आप वहाँ पे वो questions कर सकते हैं and आपको definitely वो answers भी मिलेंगे. Okay, thanks guys, thanks a lot. Namaskar. Thank you Raman, thank you.